Yo, hey guys, welcome again. So, we have studied Unit 1, that is text mining. We have understood each and every concept, each and every topic related to text mining. What are text mining? What are pre-processing? What are the operations we do on text mining? What are categorization? What is clustering? What is information extraction? What are the probabilistic model for information extraction, text mining application, etc. So we have gone through each and every topics in Unit 1. So in this unit we'll try to focus on Unit 2, that is methods and approaches. It's technically based on the methods, or how should we do text processing. It's also a text based method. It's not key when you're gonna think about how media, or that is the other topic, like the social media and analytics. We are not going that much. We are not touching that the other topics. The sole purpose of this lecture is to complete Unit 2 and complete the text based section. Okay, so let's start it. Okay, so methods and approaches, we start with it. So the first, we have discussed what is meta-analysis, so start with it only. While Unit 1 introduced the concept of text mining, Unit 2 focus on tools and algorithms used to actually do it. Okay, so it's more of a kind of a, you can say, practical implementation of it. The first is content analysis. That is very important. Content analysis is a research technique. Okay, research technique for systematically analyzing written, spoken or visual communication. Okay, it quantifies content by counting the presence of certain words, themes or concept. You can say context also. मतलब क्या हुआ ये? मतलब आपके पास कोई भी कंटेंट है, it should be a text, that is written format, it should be a audio format, spoken or visual communication, like you can say a visual, like a image, video, anything, animation, anything. So if you have three of these things, you can say it's a content. Okay, now you want to analyze it, so your content needs to communicate. ठीक है, so when you use some techniques, some research techniques to systematically analyze the content you have using communication, that quantifies. How should you do that? Either by counting the presence of certain words. For example, if you have a text and in that text certain words as written as, you can say, money, so you can say it's a finance related document. Okay, so by seeing the presence of certain words or the themes or the concept or context of that complete text or the sentence, you can justify, you can derive the content of it. This is called known as content analysis. Okay, so what are the types of content analysis? There are conceptual analysis and relational analysis. Conceptual analysis, looking at the frequency of the concept, like how many times a certain word has been occurred, like freedom कितने बार आया स्पीच में, तो there is a certain word की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो यू आर लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कॉन्सेप्ट, कि कितने बार वर्ड्स, कितने बार बोला गया एक सेंटेंस में, एक स्पीच में कितने बार फ्रीडम का इस्तेमाल किया. इट इज कंसेप्चुअल एनालिसिस. द अदर इज रिलेशनल एनालिसिस, लुकिंग एट कॉन्सेप्ट दैट रिलेटेड टू ईच अदर. डज फ्रीडम अपीयर नेक्स्ट टू वॉर और पीस? क्या ऐसा कुछ आया था? यानी कि इट्स नॉट अबाउट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड, इट फोकसिंग ऑन द रिलेशन ऑफ दैट वर्ड इन द कंप्लीट सेंटेंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ कंटेक्स्ट. So there are two types of content analysis. You are focusing on the sole conceptual analysis, that is a particular word in the sentence, or you are studying about the complete relation of that word in the sentence. These are the two things, conceptual and relational analysis. What are the steps? The first is select the content. ठीक है, तो what is the, choose the data, like newspaper from 2023 या 2025, anything. You need to choose the content, कि कितने content में तुम्हें analysis करना है. Then you need to define the units, कि कौन कौन से words है that you gonna think. What are you counting? The words, the phrases, the paragraph, what are you exactly counting? Then develop the coding rules. Not that coding जो हम करते हैं, not that coding. It's a thinking कि तुम्हें इस पूरे जो सेंटेंस जो तुमने चुना है, जो तुमने डेटा सेट चुना है, चूज द डेटा, जो तुमने फर्स्ट स्टेप में जो कंटेंट चुना है, उस कंटेंट में कौन कौन से चीज़ें जो तुम्हें देखनी है. जैसे तुम्हें स्मार्ट वर्ड ढूंढना है, इंटेलिजेंट वर्ड ढूंढना है, क्लेवर वर्ड ढूंढना है. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इंटेलिजेंस. ठीक है, तो अगर तुम ये सारे वर्ड्स अगर तुम्हें दिखता है तो एक तरह से वो इंटेलिजेंस को शो कर रहा है, तो तुमने ये रूल डिफाइन किया. दिस इज कॉल्ड रूल बेस्ड माइनिंग.
ठीक है, याद रखना, दिस इज कॉल्ड रूल बेस्ड माइनिंग, जिसमें यू आर डिफाइनिंग द रूल्स, यू आर डिफाइनिंग कि अगर ये सारे वर्ड्स आए तो इसका मतलब ये होगा, यू आर डिफाइनिंग इट, तो यू हैव डिफाइंड द रूल्स. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट डू यू थिंक? जस्ट फर्स्ट इज you have selected the content, you have defined the units कि कौन कौन सी चीज़ें you need to search. The third, you have developed your coding rules. The fourth, you need to analyze it, you need to count and interpret it कि whether जो तुमने content चुना है उसमें ये सारे words आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. You need to interpret, you need to analyze, you need to do the main analysis part. So these are the things, these are the basic steps that is used for content analysis. ओके अब हम कंटेंट एनालिसिस के बड़े भाई के ऊपर बात करते हैं, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी. तो एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट गिव्स मशीन द एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज इंजन बिहाइंड टेक्स्ट माइनिंग. दिस इज अ थिंग जिससे टेक्स्ट माइनिंग एक्चुअल में होती है. सो NLP इज अ ग्रेट थिंग, इट्स जस्ट अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, और जो हमने डिस्कस किया कंटेंट एनालिसिस, इसका बेस कंटेंट एनालिसिस ही है. NLP इज बेस्ड ऑन, इट्स जस्ट द टॉप ऑफ द कंटेंट एनालिसिस. पहले कंटेंट एनालिसिस आया, फिर NLP आया. ओके, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इट? So the key components are mainly three. First is syntactical, means syntax should be proper. Second is semantical, means meaning should be proper. The third is pragmatic means the context should be clear. मतलब the syntax means it checks the grammar, it checks the sentence structure कि तुम्हारे में parsing तो सही हुई है ना. Like this is a cat, तो this is a proper structure. But cat this is, या cat dog is this, is it a proper structure? No. The first thing is syntax analysis क्या बोलता है? You need to understand the proper structure of and the grammatical should be proper in the sentence. It checks the first thing, that is syntactical analysis. Then semantic analysis, that is specific meaning of words in context, यानी कि word sense करना चाहिए, ambiguous होना चाहिए, disambiguous नहीं होना चाहिए. Does bat का मतलब यहाँ पर animal की बात हो रही है या sports की बात हो रही है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात हो रही है. तो देर इज अ सर्टेन, सब चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए आपके कंटेक्स्ट में कि जो बैट है वो मशीन कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि आइदर यू आर डिस्कसिंग अबाउट अ बैट जो कि एक एनिमल है या एक बैट जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है. आइदर यू आर डिस्कसिंग अबाउट अ एप्पल जो कि फ्रूट है या एक एप्पल जो कि कंपनी का नाम है. तो देर मस्ट बी अ सिमेंटिक एनालिसिस, मीनिंग ऑफ ईच वर्ड शुड बी डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट. और अगर डिफाइंड नहीं है देन इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ रॉन्ग रिजल्ट्स टू यू. The third is pragmatic analysis. It is the context analysis and understanding the intent and sarcasm. This is the or next level thing of NLP and the most brutal thing that NLP जो NLP को कंटेंट एनालिसिस एकदम अलग करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंटेंट एनालिसिस कहीं एक टाइम पे अचीव कर लिया था, बट दिस इज द थिंग, द कॉन्टेक्स्ट थिंग जो कि वो अचीव नहीं कर पाया. लाइक जो आपका कंटेंट एनालिसिस, यू कांट अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द थिंग कि इसके पीछे इंटेंट क्या है या सरकाज़म, it can't understand, but NLP can understand it. That's why NLP is the advanced version of content analysis. Okay, I think we got it. The next thing, you can draw a diagram also, like you have a talk player called the, then उसके बाद semantic, syntax, then word forms. This is a thing कि it's like a, I have made a description, it's like onion like stack. You can think about this or make a diagram on yourself कि कैसा diagram इसका बनेगा. ठीक है, because the diagram is not, it's present in internet, you can search of it, the diagram only. The third is clustering and topic detection. Next topic is, we have discussed about content analysis, natural language processing, clustering and topic detection we need to study. ठीक है, क्लस्टरिंग हमने बहुत अच्छे समझा था. वी सॉ क्लस्टरिंग यूनिट 1 ऑब्वियसली. तो यूनिट 2 में वी शुड फोकस ऑन टॉपिक डिटेक्शन ओनली, बिकॉज क्लस्टरिंग वहाँ पर यहाँ पर दोनों सेम है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट टॉपिक डिटेक्शन. हम लोग ये देखेंगे कि क्लस्टरिंग और टॉपिक डिटेक्शन में डिफरेंस क्या है, दैट विल स्टडी. ठीक है, टॉपिक डिटेक्शन क्या है? टॉपिक मॉडलिंग भी से बोलते हैं, एन अनसुपरवाइज्ड टेक्निक टू डिस्कवर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दैट अकर्स इन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. मतलब इन द सेंस कि आपके पास ये भी एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है. क्लस्टरिंग भी एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक थी, जो कि एक टॉपिक आपको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्कवर से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. लेट्स स्टडी विद द एल्गोरिथम और द एग्जांपल वी कैन स्टडी. ठीक है, एग्जांपल ये समझते हैं. क्लस्टरिंग एग्जांपल के मींस पुट्स अ डॉक्यूमेंट इन वन हार्ड बॉक्स. ठीक है, दिस इज अ स्पोर्ट्स आर्टिकल. तो एक हार्ड बॉक्स यानी कि एक पर्टिकुलर क्लस्टर में आप रखते हो चीज़ों को, बट टॉपिक मॉडलिंग थोड़ा सा अलग है. इट एडमिट्स द डॉक्यूमेंट इज अ मिक्स, लाइक दिस इज मोस्टली सोर्स बट सम फाइनेंस. मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल बताता हूँ.
इसका मतलब क्या हुआ, टॉपिक डिटेक्शन एंड क्लस्टरिंग का बेसिक डिफरेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास, विद दिस एग्जाम्पल एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड. अ न्यूज आर्टिकल अबाउट अ फुटबॉल प्लेयर engaging in text fraud, ठीक है. दिस इज अ आर्टिकल, दिस इज अ डॉक्यूमेंट आर्टिकल. आप इसको देखो. अब आप बताओ अगर आपको इसकी क्लस्टरिंग करनी होगी तो आप कैसे करोगे. तो यू कैन सी देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फुटबॉल, तो यू नीड टू मेक अ क्लस्टर कॉल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है. सी स्पोर्ट्स मान लो, तो द फुटबॉल गोज देयर कि भाई ये इसमें फुटबॉल है, प्लेयर है, तो आई थिंक ये फुटबॉल के ऊपर या स्पोर्ट्स के ऊपर बात होगी, तो मैंने इसको स्पोर्ट्स क्लस्टर में डाल दिया. पर मैंने देखा इसमें टैक्स है, फ्रॉड है, तो मैंने इसको फाइनेंस में डाल दिया, ठीक है. तो टॉपिक डिटेक्शन क्या करता है, टॉपिक डिटेक्शन बेस्ड ऑन द, यू कैन से टॉपिक्स, मल्टीपल टॉपिक्स के हिसाब से इसने अपने खुद के अलग अलग टॉपिक बना दिए. यानी कि इस डॉक्यूमेंट में 60% स्पोर्ट्स है, 40% फाइनेंस है, इसने ये बोल दिया, विच इज अ गुड थिंग कि इसने पूरा डाइवर्सेक्शन कर दिया स्टेटमेंट का. बट अगर मैं क्लस्टरिंग यूज कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैं उसको सिर्फ एक हार्ड बॉक्स में डाल देता, एक पर्टिकुलर बॉक्स में डालता, मैं एक क्लस्टर में ही सबको डालने का कोशिश करता. मैं मिक्स नहीं रखता कोई चीज़ें, मैं दोनों के लिए अलग अलग बना सकता था. मैं इसके लिए अलग बना देता और मैं इसके लिए अलग बना देता. लाइक जैसा ये मैंने क्लस्टरिंग किया है, इसमें ये मैंने स्पोर्ट्स के लिए अलग बनाया है और मैंने फाइनेंस के लिए अलग बनाया है, ये मैंने किया है क्लस्टरिंग. पर अगर मैं इसका करता क्या, दैट इज यू कैन से टॉपिक डिटेक्शन करता, दो मैं इसके लिए एक ही टॉपिक बनाता और उस, क्योंकि एक आर्टिकल के लिए एक टॉपिक, और उसमें बोल देता कि 60% स्पोर्ट्स के थे एंड 40% फाइनेंस के थे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टरिंग एंड टॉपिक डिटेक्शन. यह इंपॉर्टेंट टॉपिक था. क्लस्टरिंग पुट्स द डॉक्यूमेंट इन वन हार्ड बॉक्स. दिस इज स्पोर्ट्स आर्टिकल, तो इसमें सारी चीज़ें स्पोर्ट्स की, क्योंकि 60% चीज़ें स्पोर्ट्स की है, तो क्लस्टरिंग बोलेगा नहीं, दिस इज अ कंप्लीट स्पोर्ट आर्टिकल, तो मैं एक क्लस्टर में दोनों को डाल दूंगा, मैं फाइनेंस के लिए अलग क्लस्टर भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है. पर टॉपिक मॉडलिंग ये बोलता है कि नहीं यार, इट्स मोस्टली ऑफ स्पोर्ट्स बट कुछ चीज़ें इसमें फाइनेंस की है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक मॉडलिंग एंड क्लस्टरिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड द बेस्ट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. Okay, so there is a very popular algorithm called LDA algorithm, latent decision allocation, LDA you can say. So LDA assumes that every document is a mixture of topics and every topic is a mixture of words. तो ये assume करके हम चलते हैं, जैसे मैंने example आपको समझा दिया. Okay, hope it's clear. The next thing is simple predictive modeling. Using historical data to predict the future outcomes. Obviously by predictive modeling और क्या होती है, ये तो होती है. In text mining, this often involves regression और classification techniques applied for text features. मतलब ये होता है कि हमें अब प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के ऊपर बात करनी है. सिंपल वर्कफ्लो कुछ इस टाइप में रहता है. मतलब हम इसमें रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन टेक्निक्स को यूज़ करके हम टेक्स्ट माइनिंग करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होती है इसमें. फर्स्ट इज फीचर एक्सट्रैक्शन. टर्न टेक्स्ट इनटू नंबर्स, बैग ऑफ वर्ड्स टू TF-IDF. तो TF-IDF को फुल फॉर्म होता है टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. डरो मत, मैं बता रहा हूँ क्या होता है. दिस इज अ फॉर्मूला that calculates how important a word is in the document. मतलब अपने पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है. इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जगह पे क्रिकेट लिखा हुआ है, स्पोर्ट्समैन लिखा हुआ है, बैट्समैन लिखा हुआ है, बॉलर लिखा हुआ है. तो हम ये बोल सकते हैं ना कि, और बहुत जगह पे बैट्समैन आ रहा है, मतलब यहाँ पर बैट्समैन है, यहाँ पर बैट्समैन है. मतलब मान लो अगर 100 वर्ड्स है तो उसमें से 70 यू कैन से 50 वर्ड्स में 50 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बैट्समैन के बारे में बात हो रही है, बैट के बारे में बात हो रही है, इक्विपमेंट्स के बारे में बात हो रही है. तो यू कैन से जो बैट्समैन वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसकी समझो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो TF-IDF के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन इस पूरे सेंटेंस में कौन से ऐसे वर्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है. और उसके हिसाब से हम उसे स्कोर ही दे सकते हैं ताकि हम उसकी प्रायोरिटी समझ सकें. मतलब ये कि हम टर्न करते हैं टेक्स्ट को नंबर्स में कि कितने नंबर्स बार बार रिपीट हुए हैं, बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF, term frequency and inverse document frequency. A formula that calculates how important a word is in the document. Common words like the have low scores. Rare और specific words के पास high scores होते हैं, ठीक है.
तो इसके जब हम ये कर लेते हैं, जब हम इसकी फीचर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेंटेंस में अगर हमारे पास क्रिकेट स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है या स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो उसे हम 2.5 दे देंगे। अगर हम नॉर्मल द की बात कर रहे हैं, द इसका यूज़ कर रहे हैं, उसे हम 0 दे देंगे। या हम एकदम ही कुछ अलग चीज़ की बात करेंगे, टैक्स की बात कर रहे हैं, अलग ही फाइनेंस की बात कर रहे हैं, उसे हम -1 दे देंगे। तो इसके जब हम सबको ऐड करेंगे 2.5 0 -1 1.5 बना, तो इस टाइप में हम कंटेंट के बारे में बता सकते हैं कि इस कंटेंट, इस पूरे डॉक्यूमेंट अगर ये पॉजिटिव में है यानी कि डॉक्यूमेंट मोर ऑफ इन स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, इन सब सारे कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। पर अगर एकदम से नेगेटिव में चला गया, -10 चला गया, यानी कि इसमें स्पोर्ट्स की बिल्कुल बात नहीं हो रही, किसी और चीज़ की ही बात हो रही है। यू कैन से टैक्स वैक्स की, फाइनेंस की बात हो रही है। इस तरह से हम सिंपल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दिस इज अ प्रिडिक्शन मेथड ना, तो हम इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। जैसे ही हमने फीचर एक्सट्रैक्शन कर दिया, दिस इज अ फीचर एक्सट्रैक्शन स्टेप्स, जैसे हमने ये कर लिया, देन वी नीड टू डू अ मॉडल ट्रेनिंग, कि मॉडल ट्रेन करना है हमें। यूज एल्गोरिथम लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हो मॉडल ट्रेन करने के लिए। देन प्रिडिक्शन कर सकते हो, प्रिडिक्ट अ वैल्यू। एग्जांपल देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हाउस, 3 बेडरूम, पूल, लार्ज गार्डन, डाउनटाउन। ये मैंने 4-5 कीवर्ड डाल दिए। अब मेरे को मॉडल मैंने चला दिया, मैंने फीचर एक्सट्रैक्शन कर दिया। 3 बेडरूम होना चाहिए, 3 BHK होना चाहिए, पूल होना चाहिए, लार्ज गार्डन होना चाहिए, डाउनटाउन होना चाहिए। फीचर मैंने डाल दिया। अब मैं मॉडल चला दूंगा। मॉडल चलाया, प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन द टेस्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसके बिहाफ में इसने मेरे को सारे के सारे लिस्ट ऑफ घर दे दिए, जिसमें सारी चीज़ें उनके हाउसेस के प्राइसेस भी मेरे को दे दिए। तो इस तरह से मैं काम करता हूँ, ठीक है यो या सो इस तरह से हमने सिंपल प्रिडिक्टिव मॉडलिंग सीख ली। नेक्स्ट इज सेंटिमेंट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सेंटिमेंट एनालिसिस? So, in computational study of people's opinion, sentiment, emotions, attitudes are expressed in text. This classifies text as positive, negative और neutral, ठीक है। यानी कि जब हम emotions की, sentiment, emotions या attitudes की बात करते हैं, तब हम sentiment analysis यूज़ करते हैं। It's basically a branch of NLP, जिसमें हम sentiment के थ्रू, यानी कि emotions, human का emotion text में अगर लिखा हुआ है तो हम समझ सकते हैं। इंटेंट समझ सकते हैं, यू कैन से इमोशंस, इंटेंट, सरकाज़म सब समझ सकते हैं। तो देयर इज़ अ लेवल ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट लेवल, जिसमें हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं। जैसे अगर तुम्हें 1 वर्ड में बोलना हो कि मूवी कैसी थी, यू कैन से अच्छी थी, बुरी थी, न्यूट्रल थी, कुछ भी तुम बोल सकते हो। यू आर गिविंग अ होल रिव्यू, लाइक होल रिव्यू, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी। एक मूवी रिव्यू करना हो गया, तुमने एक सिंपल पूरी की पूरी मूवी को रिव्यू कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेंटेंस लेवल, उससे थोड़ा सा स्पेसिफिक चले जाओ। स्पेसिफिक सेंटेंस पॉजिटिव, यानी कि अब तुमने पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं देखा, अब तुमने उसमें एक सेंटेंस को देखा, लाइक दिस इज अ ब्यूटिफुल सीन, लाइक यू कैन से ब्यूटिफुल कार। तो देयर इज अ पर्टिकुलर सेंटेंस कि वो पॉजिटिव है, ब्यूटीफुल कार है, यानी कि वो स्पेसिफिक सेंटेंस की बात कर रहा है। अब एक एक्सपेक्ट लेवल पे आओ और डीप डाउन जाओ, एनालाइजिंग सेंटिमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक फीचर्स। दिस कैमरा इज ग्रेट बट द बैटरी इज बैड। इसमें क्या होता है, राइट एरो, कैमरा जो है वो पॉजिटिव है, बैटरी जो है वो नेगेटिव है। यानी कि हम सेंटेंस के अंदर भी स्पेसिफिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें बैड है, कौन सी चीज़ें अच्छी है। तो देयर इज अ 3 लेवल ऑफ एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, सेंटेंस एनालिसिस, एक्सपेक्ट एनालिसिस। आप समझते हैं इसके बारे में और। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जैसे मैं इसी सेंटेंस का नाम लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि जिसमें हमारे पास कैमरा जो है वो पॉजिटिव है, कैमरा इज़ ग्रेट बट बैटरी इज़ बैड। तो कैमरा हमारे पास पॉजिटिव स्कोर कर रहा है, यानी कि अच्छा है। बैटरी के बारे में हमें बुरा रिव्यू मिला है, वो बुरा है, ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव। सो ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, ये पूरा सेंटेंस न्यूट्रल हो गया। यानी कि एक्सपेक्ट लेवल पे हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव है, सेंटेंस लेवल पे क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। एक्सपेक्ट लेवल के कुछ पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, एक्सपेक्ट लेवल पे न्यूट्रल है। और क्या पता ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस हो, कुछ में नेगेटिव, कुछ में 0 हो, क्या पता किसमें किसी में प्लस भी हो, +1 हो, +1 हो। तो डॉक्यूमेंट लेवल पे, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट लेवल पे क्या होगा, क्या पता ये पूरे डॉक्यूमेंट ही पॉजिटिव हो, यानी कि पॉजिटिव। मतलब समझ रहे हो, सेंटिमेंट एनालिसिस पूरे डॉक्यूमेंट का भी होता है, पूरे सेंटेंस का भी होता है और एक्सपेक्ट्स का भी होता है। दिस इज अ लेवल ऑफ एनालिसिस दैट वी डू इन सेंटिमेंट एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, कि हम सब चीज़ें क्या करते हैं इसमें, ओके। दिस इज ऑल्सो, इट्स नॉट इररिलेवेंट डायग्राम कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, तो इट्स नॉट नीडेड, यू कैन स्किप इट। या यहाँ ये आप कर सकते हो, ये हटाओ। इंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम, डायग्राम कैसे बनाना है। आपने इनपुट डाला आई हेट
दिस फोन, पहले तो प्री प्रोसेसिंग की, उसकी टोकनाइजेशन किया, तो आई हेट दिस फोन, अलग अलग 4 टोकन्स में डिवाइड हो गए। देन आपने उसका सेंटिमेंट एनालिसिस किया, डिक्शनरी में हेट का वर्ड को आपने स्कोर किया -5, लव को स्कोर किया +5, ठीक है। फिर आपने सर्च किया, इसमें कितना होगा, आई का कुछ स्कोर नहीं होगा, 0 होगा, हेट का -5 होगा, दिस का 0 होगा, फोन का मान लो -0 होगा क्योंकि कोई काम नहीं। तो इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग टोटल सम ऑफ स्कोर कितना आया, -5, चलो फोन का 1 दे देता हूँ मैं, तो -4 आया। और मैंने देखा कि पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस अपना नेगेटिव है। तो इस टाइप का मैं एक डायग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट बना के मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ सेंटिमेंट एनालिसिस के टॉपिक को यूजिंग अ एग्जाम्पल। हम खुद एग्जाम्पल लेके या इसको न्यूमेरिकल जैसा एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हो। और ये आ भी सकता है कि देयर इज अ सर्टेन वर्ड, ये सारे लिखे हुए या एग्जाम्पल के तौर पर यही वर्ड लिखा हुआ है, अ कैमरा इज अ ग्रेट बट बैटरी इज बैड, तो डू अ सेंटिमेंट एनालिसिस। तो अब कैसे करोगे इसको, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, द वगैरह जो वर्ड है वो 0 है, कैमरा जो है वो +1 मान लो उसको, क्योंकि लेकिन नाउन है तो कुछ मत मान लो, छोड़ दो, न्यूट्रल मान लो। बैड वर्ड है तो बैड को -1 ले लो, ग्रेट है तो ग्रेट को +2 ले लो। इस टाइप हमने खुद से स्कोरिंग की, सम किया और बताया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि आप सेंटिमेंट एनालिसिस मैनुअली करके दिखा सकते हो, एग्जाम में ये पूछ सकता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कि एक वर्ड दे दिया, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करो, बताओ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज अ थिंग। ओके, नेक्स्ट इज सेंटिमेंट प्रिडिक्शन। अब हम एनालिसिस तो ठीक था, बस हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एनालिसिस। एनालिसिस में हम सोचते हैं व्हाट इज द सेंटिमेंट फॉर दिस टेक्स्ट राइट नाउ, कि अभी के अभी इस टेक्स्ट के बारे में बताओ, इसका सेंटिमेंट क्या है। पर प्रिडिक्शन में क्या है, व्हाट विल बी द सेंटिमेंट बी इन द फ्यूचर, लाइक हाउ दिस विल सेंटिमेंट लाइक इफेक्ट फ्यूचर बिहेवियर। प्रोग्निस्टिक बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल अपना स्टॉक मार्केट हो गया, एनालाइजिंग टुडेज ट्विटर के सेंटिमेंट, की ट्विटर में लोग क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, कल के एप्पल के स्टॉक्स कैसे रहेंगे। इलेक्शन फॉरकास्टिंग, एनालाइजिंग वोटर सेंटिमेंट ट्रेंड्स टू प्रेडिक्ट हु विल विन द इलेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। कस्टमर क्रंचिंग, एनालाइजिंग द सपोर्ट चैट टू प्रेडिक्ट इफ द कस्टमर इज अबाउट टू कैंसिल द सब्सक्रिप्शन और नॉट। तो अभी के एनालिसिस के हिसाब से हम फ्यूचर का कुछ प्रेडिक्शन कर सके, दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंट प्रेडिक्शन, ठीक है। टेक्निक्स क्या क्या यूज होती है, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, कंबाइनिंग सेंटिमेंट स्कोर्स विथ टाइम डेटा टू सी द ट्रेंड। अगर आपने सेंटिमेंट स्कोर्स को टाइम के हिसाब से मैप कर दिया, यू कैन सी द ट्रेंड कि क्या चीज़ें हो रही है ट्रेंड में, कुछ इस टाइप का ट्रेंड आपको दिखेगा। आइदर इट इज ग्रोइंग और इट इज डिक्लाइनिंग और इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, और यू कैन से पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, ये सारी चीज़ें होती है जनरली। तो मैंने इसे बता दिया। तो लेट्स डू अ क्विक रिविजन। टॉपिक डिटेक्शन क्या था, like what are the question it answers, like what is the document talking about, टॉपिक डिटेक्शन ये बोलता था। एल्गोरिथम क्या होता था, LDA यूज होता था ऑब्वियसली, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या करते थे, हाउ द फीट लाइक यू कैन से लेक्सिबल नाइव वाइज वगैरह यूज करते थे, सेंटिमेंट एनालाइज करते थे। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हम प्रेडिक्ट करते थे TF लाइक टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, और रिग्रेशन SVM वगैरह यूज करते हैं। तो विद दिस आवर यूनिट 2 इज ओवर। होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड लेट्स we in the next video will start unit 3. तब तक के लिए keep watching, keep studying hard. Thank you, have a nice day.